Vande Mataram, respected parents and my dear students. I wish you all a happy Republic Day. The Republic Day is celebrated on January 26th in every year. This year, the country will celebrate its 73rd Republic Day. On this auspicious occasion, I extend my heartiest greetings and good wishes to you on behalf of our Little Angel Public School. डियर स्टूडेंट्स आई हैव अ मैसेज फॉर यू। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से हम सब प्रभावित हुए हैं, हमारा एजुकेशन प्रभावित हुआ है। आप सभी को ऑनलाइन की क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसका पूरा आप लोग लाभ उठाएं और नियमित रूप से जुड़ें। किसी प्रकार से समस्या होती है तो अपने कक्षा शिक्षक से, अपने सब्जेक्ट टीचर से फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान भी करें। समस्त पालकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि भारत सरकार के द्वारा जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 3 जनवरी से 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को भी टीकाकरण किया जाना है। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी वंचित हैं, तो जिन बच्चों का टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है, संबंधित पालक उसको ध्यान देवें और संबंधित स्वास्थ्य केंद्र से या फिर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करके उस टीकाकरण का कार्य को पूरा करावें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Hello everyone, I greet you all on the eve of 73rd Republic Day. And as you know that on this day, the constitution of our India is implemented. And you know one more thing, that the constitution, it is not a static one, it is changeable. And there is a sentence in Odia that Benga kahe Bengulilo Prithvi Khyana Khyana Kyano. It means that the world, it is changing every moment. Then we have to change ourselves, to adopt ourselves in this world, because the world is changing. Due to the pandemic of COVID-19, in 2021, all the schools, colleges, universities were closed down. The learning process, it was continued. How was it possible at that time? Because of technology. You have heard the technology digitalization. Digitalization played a main role in continuing the learning process in our India. You have heard the money digitalization, the digitalization of the school. Okay, so the technology, it is increasing in such a way that all of the things, it is now digitalized one. You have heard a number of company providing online education, like the companies Byju's, On Academy, Vedantu, etc. Most of the students, they are benefited by acquiring knowledge from these companies during the time of pandemic, when the school, colleges, these were closed down. Our school also provided education, online education to the student during the time of 2020, 21, and also when there was the lockdown in our school in this current year also, in 2021 to 22, our school provided online education. But in online education, we have observed that the student enrollment was very less. All the students know about the value of education, means the career, the life of a student, the future life of a student, it's totally depend on education now in this society. But still, most of the students, we have observed, they were not joining the classes. Now also, in this current year, the students, they are not joining. A number of students are taking advantages of the online education company. So I suggest the children
not to give any break to their learning process, as the school is providing online education to all of you. Thank you. Happy Republic Day. Bonjour, my dear students. Hope you all are in blue. I wish you Happy Republic Day. This was the day when India's constitution was made and we got independence in real sense. The father of our nation, Mahatma Gandhi, said, "Be the change you wish to see in this world." And those words are relevant even today. Be a leader, make the difference. This land has become auspicious due to the blessing of the rivers. The land has assimilated within it the story of bravery and valor of brave sons. Everyone believes that peace and friendships are important for the progress of the nation. The world and humanity and each of us can do our bit. We need to be attentive toward the development of our nation and conservation of our mother nature too. So, to save the living and humanity on this beautiful planet. My dear students, plant as many trees you can. Tender them, bring seed to lives to save lives. Help the needy, spread the message of humanity. Love your surrounding and you will see the magic within you, the essence of real things. Thank you. Wish you good health. Take care. Namaste. My name is Jyoti Saw and I am the teacher of Little Angel Public School Tadola. First of all, Happy Republic Day to all of you. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान इस दिन लागू किया गया था और हमारे भारत देश को पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इसी दिन भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार नेता चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जनता के हित के लिए बनाया गया ऐसे शासन प्रणाली जो जनता के हित में हो, इसी को ही गणतंत्र कहते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है जहां जनता के मत के आधार पर शासक का चुनाव किया जाता है। इसलिए किसी भी गणतांत्रिक देश में जनता का निर्णय जो है वो सर्वमान्य माना जाता है। किसी भी जाति लिंग भेद के बगैर 18 वर्ष के सभी नागरिकों को वोट देने का पूरा अधिकार दिया जाता है। इसलिए भारत को लोकतांत्रिक देश भी कहा जाता है। बच्चों को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो सदैव अपने देश के हित और देश में प्रेम और समर्पण की भावना रखें और सदैव देश के हित के लिए कार्य करें और सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार, कानून व्यवस्था और समाज व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनके उत्तरदायित्व को निभाएं। जय हिंद, जय भारत। Hello students, Happy Republic Day to all of you. Now in the occasion I want to say 2 lines. First is defend and venture with courage and go on working enthusiasm. It means निर्भर करो और साहस सहित उद्यम उत्साह से काम करते जाओ. Second is have a goal, do not harm your own and others. It means लक्ष्य रखो तुमसे अपना और दूसरे का किसी भी प्रकार का अमंगल ना हो. ओके, थैंक यू. जय हिंद. देश के 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ही यह परिणाम है कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिल पाई है। किंतु आज भी हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों से देश अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जो कि देश की सुरक्षा को लेकर
नियमों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी 2022 को आप अपने लिए भी कुछ विशेष नियम बनाइए, उन नियमों को पालन कीजिए, उन नियमों को अपने जीवन पर लागू कीजिए। समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने की एक नई पहल कीजिए। देश के भविष्य होने के साथ साथ आप सभी देश के आधार स्तंभ भी हैं। अतः समाज में परिवर्तन या बदलाव लाना आपका ही कार्य है। जीवन तो क्षणिक है ही, किंतु आपके हाथों से समाज में परिवर्तन एवं एक नए भारत के निर्माण को देखने की इच्छा हम में सदैव के लिए ही बनी रहेगी। देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें और अपने देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात करते रहें। आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम। नमः तिरंगे अवतु प्रीणातु च त्वां भक्तवत्सलः ईश्वरः गणतंत्र दिवसः शुभाशयाः। अद्य अहं सर्वे स्वाधीन भारतस्य 75 गणतंत्र दिनोत्सव आचर्यन्तः। गणतंत्र दिवसः भारतस्य राष्ट्रीय प्रमुखः पर्वः अस्ति। प्रतिवर्षे जनवरी मासे 26 दिनाङ्के गणतंत्र दिवसः भवति। तत्पश्चात् अहं सर्वेषां विद्यार्थिनां समक्षे महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य एकः विचार्यं प्रस्तुतं करोमि। स्वप्नाः ते न भवन्ति यान् वयं सुप्तावस्थाभ्यां पश्यामः, परं स्वप्ना ते भवन्ति यो अस्माकं नेत्रयो निद्रा न आदयाछि। इसका मतलब यह है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भी सपने कभी सोते हुए मत देखना। सोते हुए देखना वाला सपना अलग है, लेकिन जो आपके मन में बनने की इच्छा है, जो आपको बनने की ललक है, जो आप बनना चाहते हो, उसको पूरा करने के लिए आप अपना तन मन और पूरी मेहनत लगा देना, ताकि आप अपना सपना पूरा कर सको और जो आपको बनने की इच्छा है वो बन सको। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश भारत के राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेनाओं की शानदार परेड होता है। यह पर्व हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा कर हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर लड़ती रहनी चाहिए और हम सबको संगठित होकर एक संगठन बनाना चाहिए, जिससे हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। जय हिंद। Good morning, Happy Republic Day student. Today I would like to say something about good habit. For example, grace. G for giving, R for reading, E for exercise, A for appreciate and S for share. First G, giving. हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें देने वालों में रखा, न कि लेने वालों में। सेकंड, रीडिंग। हमेशा हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो हमेशा हमारे साथ होता है। भले ही बाकी चीज़ हमारे साथ रहे या न रहे, लेकिन नॉलेज जो होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे हमेशा काम आता है। ई फॉर एक्सरसाइज।
आजकल की जनरेशन में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हैं, मोबाइल में ही गेम खेलेंगे, मोबाइल में ही यूट्यूब देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो मोबाइल से ही देखते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, है ना। तो उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ए फॉर एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मीन्स आभार व्यक्त करना। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी कोई आपकी सहायता करता है या फिर जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, सराहना देना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। एस फॉर शेयर, शेयर, शेयर मीन्स हमें क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। क्या क्या को बांटना चाहिए, हम अपने सुख दुख को भी बांट सकते हैं, हम हमारी चीज़ों को भी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में माता पिता होते हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी होती रहती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें बहुत सारी हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम कभी कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो सुख वाली घड़ी हो चाहे दुख वाली घड़ी हो, उस चीज़ को हमें अपने मम्मी पापा या फिर अपने से बड़े भाई बहन या अपने दोस्त किसी साथी को हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें उस चीज़ को शेयर करना चाहिए, जिससे हमें क्या मिल सके, उस चीज़ से हमें, अगर खुशी की बात है तो हमारा खुशी दुगना हो जाएगा, अगर दुख की बात है तो हमारा जो दुख रहेगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। My name is Dasrath Gupta and I am your biology teacher. My dear students, as you all know that today we are celebrating 73rd Republic Day. First of all, many congratulations to all of you for this. I hope you all are safe at your homes. My dear students, you all are future of our country. We should never forget the ideal and thoughts of the great warriors who sacrificed their lives in the freedom struggle. As you all know, from 1950 we implemented our constitution, and ever since we made our constitution, we got some rights. Knowing these rights, we also have to perform duties for our country. We have to play many roles to take forward our country. These roles are of different types, like we have to be a responsible citizen, not only for ourselves but also for our society. Keep our surrounding clean, and following the corona protocol is also like service to the country. My dear students, I hope that you will become a responsible person and serve the country in various fields. Once again, Happy Republic Day to all of you, and Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.